So hello everyone and welcome to this next video on this MCQ series. I'm Dr. Ankit Khandelwal and welcome to my channel Human Anatomy by Dr. Ankit. Let us start with the first MCQ over here. 25-year-old woman notes the pictured asymmetry in her neck when she tenses the skin on her inferior face and neck. This asymmetry may be due to the limited mesodermal migration in which of the following embryonic structures. So you can see the asymmetry over here, right, on her neck, and what we see is that on the left side there is contraction of the muscles. Okay, on the left side there is contraction of the muscles, but on the right side nothing of that sort happens. Which muscle is this? The muscle over here, if you guys remember, is the platysma muscle that is supplied by which nerve? By the cervical branch of facial nerve. So now they are asking you which arch is being damaged over here. Now facial nerve is the nerve of the which pharyngeal arch? Topic is actually pharyngeal arch. We know there are various arches, around 5 arches are there. There is first arch, there is second, there is third arch, there is fourth arch, and then there is sixth arch. And the nerves of the first arch is V3, second arch is facial, third arch is glossopharyngeal, fourth arch is superior laryngeal nerve, and sixth arch is recurrent laryngeal nerve. The question over here is about the facial nerve over here. The arch is second pharyngeal arch, hence the answer over here will be the second pharyngeal arch. Here's the image showing us all the pharyngeal arches. So these are all the arches. Remember, it's a very important topic. Outside over here, these are known as the clefts, and on the inside where the arches meet, these are known as the endodermal pouches. Okay, so the topic pharyngeal arch is very important. चलिए जी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Next question says unconscious patient is admitted after sustaining a head injury. The physician performs ophthalmoscopic examination and finds that the pupil of the left eye constricts. So left eye का pupil जो है, it is constricting, meiosis, when the light is shown to that eye. ठीक है. Pupillary constriction on stimulation by light indicates which two cranial nerves are intact. So basically क्या पूछ रहे हैं, what they are asking is that do you know about the light reflex, and if yes, then do you know कि आपको पता है कि इसमें afferent और efferent nerve कौन सी है, afferent कौन सी, efferent कौन सी है. So जब किसी की आंख में लाइट मारते हैं, when you show the light into any eye, the sensation of that light is taken up by the optic nerve. तो afferent हो गई हमारी optic nerve, which is the second cranial nerve. पहली olfactory, second optic. Efferent क्या है? Efferent you have the constriction of the pupil, है ना. तो pupil में muscles होती हैं. One there is sphincter pupillae which will constrict the pupil, और दूसरी जो dilate करती है that is known as dilator pupillae. Sphincter pupillae कौन सप्लाई करता है? It is supplied by the parasympathetic. और parasympathetic nerve कौन सी है? Parasympathetic is the third cranial nerve. And dilator pupil is by sympathetic. So here they are referring to the meiosis, मतलब sphincter pupillae का काम, that is the third cranial nerve. So हमारी जो efferent वाली nerve हुई, that becomes the third cranial nerve, which is also known as the oculomotor. तो afferent efferent clear है? Then I guess we can go with the answer. Optic and oculomotor, option number A, simple सी बात. Okay, here you can see the image with the whole, this the light has been shown over here. यहाँ पूरी image समझ लेते हैं. The light has been shown over here onto the left eye. Afferent fibers are the optic nerve, so afferent बन गए हमारे optic. Then they went to the midbrain, and remember it is a bilateral reflex. एक आँख में light दिखाते हैं, दोनों आँख की pupil constrict करती हैं. Okay, then it goes to the midbrain. Midbrain में there is a pretectal nucleus and Edinger-Westphal nucleus. Edinger-Westphal is the one which is carrying the parasympathetic via the third cranial nerve, मतलब oculomotor nerve. Then it comes out and it supplies the which muscle? Sphincter pupillae. ठीक, तो ये याद रखिए, light reflex, afferent efferent, very important question. Come to the third one. In dislocation of the jaw dislocate हो गया. Displacement of the articular disc. किसका displacement? Articular disc beyond the articular tubercle of the TMJ joint के से बाहर आ गया articular disc. Results from spasm or excessive contraction of which muscle? So कौन सी muscle है which is directly related to the articular disc? Simple सा question ये है. Which muscle attachment is very close to articular disc of the TMJ? TMJ हमारा यहाँ पे bichondrial joint होता है, and we should know that TMJ के अंदर there is a articular disc over here, and the muscle that reaches the articular disc or the neck of the mandible is our lateral pterygoid muscle. Lateral pterygoid muscle supplied by V3. क्या एक्शन होता है इसका? The action of lateral pterygoid muscle is opening of mouth. मुंह खोलने काम आता है, chewing movement में काम आएगा, और protraction of mandible, प्रोट्रैक्शन या प्रोट्रूजन कह लीजिए, प्रोट्रूजन ऑफ मैंडिबल, सेम थिंग.
ये इसके मेन काम है। आंसर तो हमारा लेटल टेरिकॉइड होगा, ऑप्शन में ढूंढते हैं, ये रहा ऑप्शन नंबर बी में लेटल टेरिकॉइड। एक इमेज में देखते हैं लेटल टेरिकॉइड का अटैचमेंट। सो लुक ओवर हियर केयरफुली, दिस इज द लेटल टेरिकॉइड मसल, ये हमारा लोअर हेड लेटल टेरिकॉइड का, ये हमारा अपर हेड लेटल टेरिकॉइड का। एंड यू कैन सी बोथ ऑफ दीज फाइबर्स आर गोइंग वेयर क्लोज टू आर्टिकुलर डिस्क, therefore it is said that articular disc is a remnant of the lateral pterygoid muscle. Clear? चलिए क्लियर हो गया तो वेरी गुड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। फोर्थ क्वेश्चन, 32-year-old man presents with unilateral paralysis of the muscles of mastication। तो क्या हुआ इसमें कि मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन का एक साइड पैरालिसिस हो गई ऑन द राइट साइड, तो राइट साइड में देयर इज पैरालिसिस, ठीक है, ये राइट मान लो, लेफ्ट ले लो। दिस कंडीशन हैज रिजल्टेड इन फेशियल एसिमेट्री as noted in the figure, though he is uncomfortable with his appearance and has difficulty when chewing his food, his chief complaint, अब chief complaint देखते हैं क्या है, chief complaint is his difficulty swallowing, dysphagia है इसको, मतलब उसकी राइट साइड की मेस्टिकेटरी मसल्स काम नहीं कर रही हैं, फाइन, लेफ्ट साइड से चबा रहा है, ठीक है, थोड़ा फेशियल अपीयरेंस थोड़ा सा हो गया है, बट चलो। मेन कंसर्न ऑफ दिस पेशेंट इज डिस्फेजिया, मतलब स्वेलो करने में दिक्कत आ रही है। अब याद रखिए स्वेलोइंग, आई हैड पोस्टेड वीडियो स्वेलिंग में, मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, ज़रूर देखिए उसको जब टाइम मिलेगा आपको, पूरा डिटेल वीडियो क्या क्या फेजेस होती हैं स्वेलोइंग की, आपको मालूम पड़ेगा कि इतना कॉम्प्लिकेटेड फेज होती है और कितनी आसानी तरह से हम समझ सकते हैं। तो स्वेलोइंग में इसको दिक्कत हो रही है पेशेंट को। व्हाट मसल इज मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व इन दिस डिस्फेजिया, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए जो नर्व इन्वॉल्व है, द नर्व इन्वॉल्व ओवर हियर इज द V3 मैंडिबुलर नर्व, तो ये मैस्टिकेशन प्रॉब्लम आ रही है। अब ऑप्शन है हमारे पास स्टर्नोहाइड, स्टाइलोहाइड, माइलोहाइड, स्टाइलोफेरिंजियस। स्वेलोइंग में हमें सबको पहले लगता है कि हाँ फेरिंग्स इन्वॉल्व होता है, स्टाइलोफेरिंजियस आंसर होगा, बट स्टाइलोफेरिंजियस सप्लाइड बाय 9th cranial nerve। प्रॉब्लम ये है, nerve only damaged is V3। now V3 supplies which muscles? it will supply all the masticatory muscles। कौन कौन सी masticatory muscles देखते हैं। one is the masseter, सबको याद होगी, second is temporalis, और फिर दो टेरिकॉइड आती हैं which are your lateral and medial pterygoid। इनके अलावा apart from this it also supplies 4 other muscles known as mat, mnemonic है mat। mat से क्या हुआ, M से you have the mylohyoid, A से you have the anterior belly digastric, और दो T हैं, दो टेंसर, टेंसर टिम्पनी, टेंसर पेलेटिनी, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में आप जाओगे तो स्टर्नोहाइड, स्टाइलोहाइड, माइलोहाइड, स्टाइलोफेरिंजियस, आउट ऑफ दीज ऑप्शंस ओनली माइलोहाइड इज सप्लाइड बाय द मैंडिबुलर नर्व, ये आ गया माइलोहाइड। तो माइलोहाइड कैसे हेल्प करेगी स्वेलोइंग में, अगेन कह रहा हूँ वीडियो आप देख लेते हैं अगर, या देख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, पूरा क्लियर हो जाएगा। माइलोहाइड इज फॉर्मिंग द फ्लोर ऑफ द माउथ, फ्लोर ऑफ द माउथ। और जब कभी आप स्वेलो करो, अपना हाथ यहाँ के रखे देखिए, हाथ यहाँ रख के देखिए, व्हेनेवर यू विल स्वेलो, जब भी आप स्वेलो करोगे जो फ्लोर ऑफ द माउथ है इट एलिवेट्स, ठीक है, पुश करता है टंग को पीछे, हेल्प करता है, तभी इसको प्रॉब्लम हो रही है स्वेलिंग में। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी माइलोहाइड, ठीक है, याद रखिए इस बात को। यहाँ पर क्या दिखाया गया है, यहाँ पर द कंप्लीट मैंडिबुलर नर्व और उसके डिवीजन सारे हैं, ध्यान से देखते हैं क्या क्या है इसमें। सो दिस इज द सेंसरी रूट एंड दैट इज द मोटर रूट, ठीक है, ये आए हमारी मैंडिबुलर नर्व। अगर मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट करूँ कुछ रेड डॉट से, मैंडिबुलर नर्व है। What it supplies is, it supplies most of this, not most but all of the masticatory muscles। क्या क्या है इसमें, middle pterygoid है, ठीक है, then you have the masseteric nerve, ठीक है, then you have the temporal nerves, ठीक है, and then also you will have the other nerve जो कि हमारी बच गई lateral pterygoid की, ये आ गई ब्रांच। Apart from this it also gives off nerves or branches to mylohyoid, nerve to mylohyoid हो गई, anterior belly और digastric आ गए, और यहाँ पे दो टेंसर आ गए, ये सारी मसल्स हैं। एज इसमें सेंसरी रूट भी है, इट ऑल्सो गिव्स ऑफ ऑरिकुलोटेम्पोरल है, लिंगुअल नर्व है, आपकी इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व है, ये सारी नर्व्स इसमें से आती हैं। दीज आर ऑल्सो सेंसरी, दीज आर ऑल दी ब्रांचेस ऑफ दी मैंडिबुलर नर्व। मैंडिबुलर नर्व अगर पूछूं कौन से फोरामेन से बाहर आता है, आई होप यू कैन आंसर ओवेल, फोरामेन ओवेल से बाहर आता है, राइट। इसको स्क्रीनशॉट लेके एक बार रिवाइज जरूर करना, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नर्व, मैंडिबुलर नर्व की सारी ब्रांचेस। ऑरिकुलोटेम्पोरल यहाँ लिख दूँ, पोस्टीरियर डिवीजन से आती है, lingual nerve posterior division, inferior alveolar nerve posterior division, these are the 3 branches from the posterior division of the mandibular nerve, rest all comes from the anterior division, एक याद रखिएगा इसको। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन पे। 46-year-old diagnosed with extradural tumor in the posterior cranial fossa, पीछे posterior cranial fossa है, वहाँ पे ड्यूरा के बाहर ट्यूमर आ गया है। When the patient protruded his tongue during examination, the tongue deviates to the right, टंग को उसने बाहर निकालने की कोशिश करी, एग्जामिनेशन हुआ, टंग राइट को मुड़ गई ऐसे,
राइट को पड़ गई। विच मसल एंड नर्व आर मोस्ट लाइकली इंजर्ड। एक निमोनिक याद रखिए हमेशा हमेशा हमेशा, टंग पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। निमोनिक है टंग लिक्स द वुंड, टंग लिक्स द वुंड मतलब क्या है? मतलब ये है कि जिस तरफ चोट है टंग उस तरफ डेविएट करती है। इस केस में जिस तरफ पैल्सी होगी टंग वहां डेविएट करेगी। टंग इज डेविएटिंग टू द राइट, इसका मतलब देयर इज अ राइट साइड। टंग की कौन सी नर्व सप्लाई है? मोटर सप्लाई, हाइपोग्लॉसल नर्व। तो राइट साइड की 12th नर्व डैमेज है और प्रोट्रूशन कौन सी मसल करा रही है? राइट जीनियोग्लॉसस करा रही है। ये दोनों अफेक्टेड है। आंसर सीधा हो गया ऑप्शन नंबर ए, राइट हाइपोग्लॉसल नर्व, राइट जीनियोग्लॉसस। ये एक इमेज देखिए, इसमें लेफ्ट दिखाया इमेज में, बट के समझने काफ़ी है। तो इन दिस केस लेफ्ट साइड में 12th नर्व पैल्सी होगी, तभी टंग डेविएट कर रही है लेफ्ट साइड को। और आप देखो ये ट्रॉफी देख सकते हैं, थोड़ी बहुत फैसिकुलेशन भी आ सकती है। ठीक है, याद रखिए इस पॉइंट को, द टंग लिक्स द वुंड। चलिए आते हैं 6th क्वेश्चन पे। पेशेंट इज अनेबल टू टेस्ट अ पीस ऑफ शुगर प्लेस ऑन द एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग, व्हाट क्रेनियल नर्व है? क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन का टॉपिक है कि डू यू नो द सेंसरी सप्लाई ऑफ द टंग। अगर हाँ पता है तो बताइए कि एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग में टेस्ट कौन कैरी करता है। जिसका आंसर है हमारा सीधा साधा कॉर्डा टिम्पनी नर्व, बट कॉर्डा टिम्पनी सर ऑप्शन में ही नहीं है। देन याद रखिए कॉर्डा टिम्पनी इज अ ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। फेशियल ऑप्शन होगा, कुछ तो होगा, ये रहा ऑप्शन हमारा फेशियल नर्व। पूरा समझ लेते हैं यहाँ पर इस इमेज में। दिस इमेज ओवर हेयर, यहाँ पे मोटर नर्व, यहाँ पे सेंसरी नर्व। दिस इज एंटीरियर पार्ट, दिस इज पोस्टीरियर पार्ट। अब एंटीरियर पार्ट में समझिए, एंटीरियर पार्ट में लिंगुअल नर्व इज जनरल सेंसरी। लिंगुअल किसकी ब्रांच है? V3 की, वही पढ़ा था ना। कॉर्डा टिम्पनी स्पेशल सेंसरी, स्पेशल सेंसरी होता है टेस्ट का, 7th फेशियल नर्व से। पोस्टे पार्ट ऑफ टंग आ रहा है हमारी ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व से, और पोस्टे मोस्ट पार्ट ऑफ टंग आ रहा है वेगस की ब्रांच इंटरनल लैरिंजियल नर्व से। मोटर सप्लाई इज कंप्लीटली बाय द 12th एक्सेप्ट पैलेटोग्लॉसस मसल, जिसकी सप्लाई आती है वेगस नर्व से। ऐसा क्यों सर? कैसे याद करें सर? एक्सेप्ट सिंपल है कि पैलेट इज ऑल्सो मसल, पैलेटोग्लॉसस ऑल्सो मसल ऑफ द पैलेट। पैलेट की नर्व सप्लाई आती है फेरेंजियल प्लेक्सस से। ठीक है, फेरेंजियल प्लेक्सस हो गया वेगस नर्व। चलिए आई होप क्लियर है। चलिए 7th क्वेश्चन पे आते हैं। 52-year-old was eating his dinner in a seafood restaurant when he suddenly choked on a piece of fish. डिनर कर रहे थे रेस्टोरेंट में, अचानक फिश खा रहे थे और एकदम चोकिंग शुरू हो गई। आखिर कह रहा हूँ स्वेलिंग वाला वीडियो जरूर देखिएगा, काफ़ी फंडे क्लियर होंगे उससे। He gasped that he had a bone stuck in his throat, assuming that the fish bone was stuck in the pyriform fossa. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग PYQ कर रहे हैं उन्हें पता है pyriform fossa. Assuming that the bone was stuck in the pyriform fossa, the following statements are correct except, गलत कौन सा है? 4 में से 3 सही है, एक गलत है। गलत ढूंढना है, और बनाओ ढूंढना है। चलिए ढूंढते हैं। ऑप्शन है पायरिफॉर्म फोसा लाइज ऑन ईदर साइड ऑफ द एंट्रेंस ऑफ लैरिंग्स, बिल्कुल ट्रू। पायरिफॉर्म फोसा इज अ पार्ट ऑफ द हाइपोफैरिंग्स। म्यूकस मेम्ब्रेन लाइंग द पायरिफॉर्म फोसा सेंसिटिव, बिल्कुल सही बात है। इनर्वेटेड बाय द रेक्टल लैरिंजियल, गलत बात है जी। क्या गलत बात है इसमें? सेंसिटिव तो है बट इट इज इनर्वेटेड नॉट बाय द रिकरेंट लैरिंजियल, इनर्वेटेड बाय द इंटरनल लैरिंजियल नर्व। क्यों सर? बेटा रिकरेंट लैरिंजियल नर्व नीचे से आती है, रिकरेंट नाम है ना उसका, रिकरेंट मतलब नीचे से रिकर करके ऊपर आ रही है। सो कॉमन सेंस लगाओ, इट विल बेसिकली सप्लाई द लोअर पार्ट ऑफ लैरिंग्स। अब पायरिफॉर्म फोसा कहाँ है? इट इज एट द अपर पार्ट ऑफ लैरिंग्स, उसके साइड में है ये। इट इज एक्चुअली नॉट अ पार्ट ऑफ लैरिंग्स, इट इज पार्ट ऑफ फेरिंग्स, साइड में। वहां पर एंट्री होती है इंटरनल लैरिंजियल नर्व की। चलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है, आंसर ही होना चाहिए फिलहाल। बी और सी और डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं एक बार, क्लियर हो जाएगा। पायरिफॉर्म फोसा इज बाउंडेड लेटरली बाय द थायराइड कार्टिलेज एंड द थायरॉइड मेम्ब्रेन। ये बाउंड्रीज हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड इट इज बाउंडेड मीडियली बाय द एरिएपिग्लोटिक फोल्ड, सब सही बात है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। यहाँ पर समझते हैं कैसे। देखिए ये हमारा एक इमेज है, यहाँ पर ये लैरिंजियल ओरिफिस है, जहाँ पे लैरिंजियल इनलेट कह सकते हैं, और उसके साइड में ये पायरिफॉर्म फोसा है। ठीक, ये हो गया ईसोफेगस आ गया पीछे की तरफ, और ये ऊपर की तरफ आ रहा है यूला। तो पायरिफॉर्म फोसा इज ऑन द साइड। एक रिसेंट इमेज ये भी आई थी, ये भी ध्यान रखिए, लैरिंगोस्कोपिक इमेज आई थी। उसमें यू कैन वेरी वेल सी द एपिग्लोटिस ओवर हेयर, दीज आर द एरी एपिग्लोटिक फोल्ड, है ना। ये हमारे आ गए यहाँ पर वोकल कॉर्ड हो गए, और लेटर टू द एंट्री जो पी बना हुआ है दैट इज द पायरिफॉर्म फोसा। इट इज अ पार्ट ऑफ फेरिंग्स, ना कि लैरिंग्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 8th क्वेश्चन। 65-year-old इज कंप्लेनिंग ऑफ अ परसिस्टेंट नोज ब्लीड। भाई नाक से खून आ रहा है, परसिस्टेंट नोज ब्लीड। हिज फिजिशियन यूजेस अ कॉटन स्वैब टू अप्लाई प्रेशर एट द सोर्स, द इन्फीरियर एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लेटरल नेजल वॉल। तो लेटरल नेजल वॉल के इन्फीरियर और पोस्टीरियर एस्पेक्ट में, वहां पे सोर्स ऑफ ब्लीडिंग है।
विच आर्टरी इज द मोस्ट लाइकली सोर्स ऑफ ब्लीडिंग। हमें ये पता लगाना है कि इन्होंने लोकेशन बता दी कि लोकेशन क्या है, लेटरल नेजल वॉल में है, उसके इन्फीरियर और पोस्टीरियर एस्पेक्ट में कोई आर्टरी वहां से ब्लीडिंग हो रही है। अब हमें पता लगानी आर्टरी कौन सी है, क्या वो ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी है, क्या वो इंफ्राऑर्बिटल है, फेशियल है, स्फीनोपैलेटाइन है। अब इसमें रूल आउट कर दो, देखो फेशियल आर्टरी तो हो नहीं सकती, इट इज रनिंग ऑन द फेस, आगे की तरफ होगी। ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी जो है एक बार कोई हो भी सकती है, सोच सकते हैं कि बिकॉज इट एंटर्स ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट, ठीक है जी। इंफ्राऑर्बिटल आर्टरी, अब इंफ्राऑर्बिटल आर्टरी तो देखो ऑर्बिट में नीचे की तरफ रन कर रही है, इट इज रनिंग एक्चुअली इफ यू टेक द नोज तो इसके रनिंग अराउंड द रूफ ऑफ द नोज, तो इसको भी रूल आउट कर दो। स्फीनोपैलेटाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेटर है, इमेज देख लो यहाँ पर, लुक एट बोथ द इमेजेस। ये है नेजल सेप्टम की इमेज एंड दिस इमेज इज ऑफ द लेटरल नेजल वॉल की इमेज। पोस्टीरियर और इन्फीरियर एस्पेक्ट देखना है हमें किसका, लेटरल नेजल वॉल का। अब दोनों ही देख लो यहाँ पर। इफ यू लुक एट द लेटरल नेजल वॉल ओवर हेयर, पीछे की तरफ कौन सी मेन आर्टरी, स्फीनोपैलेटाइन। इट इज एक्चुअली द मेजर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टरी लीडिंग टू द नोज ब्लीड, है ना, एपिस्टेक्सिस ओवर हेयर। और बाकी आप देखिए ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी भी है यहाँ पर, बट इट इज रनिंग एक्चुअली रनिंग बिलो एंड गोइंग इनटू द पैलेट। स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी मेन आर्टरी है। बाकी आप देख लीजिए, एंट्री एथमोइडल है, पोस्टीरियर एथमोइडल है, सुपीरियर टर्मिनेट हो गया यहाँ पर, इन्फीरियर टर्मिनेट हो गया, फिलहाल आर्टरीज ये है। तो पीछे दो आर्टरीज आ रही हैं, स्फीनोपैलेटाइन, ग्रेटर पैलेटाइन, बट ग्रेटर पैलेटाइन इज एक्चुअली अ ब्रांच ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, सो इज द स्फीनोपैलेटाइन, है ना, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली लाइंग इन द मोस्ट पोस्टीरियर एस्पेक्ट, इट गोज अराउंड बट अल्टीमेटली एंड्स इन द ग्रेटर पैलेटाइन। अब इसी चीज को आप नेजल सेप्टम में देखिए, फिर लुक एट नेजल सेप्टम, अगेन स्फीनोपैलेटाइन आ गया पोस्टीरियर में, और यहाँ पर क्या बनेगा, दिस इज दी लिटल्स एरिया, द किसलबैक्स, द काइसलबैक्स प्लेक्सस ओवर हियर, अगेन यहाँ पे स्फीनोपैलेटाइन, ग्रेटर पैलेटाइन यहाँ पे आ गई बीच में। तो हमें क्या मालूम पड़ा कि ग्रेटर पैलेटाइन मोर लेटरली है, ज़्यादा लेटरल ज़्यादा होती है। तो आंसर क्या बना, मेजर आर्टरी जो है दैट इज अ स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी, हमारा आंसर बन गया स्फीनोपैलेटाइन। तो पूछे किसकी ब्रांच है, कोई सवाल ये भी आ सकता है, एंड डू रिमेंबर दैट इट इज अ ब्रांच ऑफ व्हाट, इट इज अ ब्रांच ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, थर्ड पार्ट ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, याद रखिएगा। चलिए आते हैं 9th क्वेश्चन पे। 33-year-old मैन कम्स टू द ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट, क्या ईएनटी सर्जन है ये, फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ अ 6 month हिस्ट्री ऑफ डिफिकल्टी ब्रीदिंग थ्रू हिज नोज एंड क्लियर नेजल डिस्चार्ज। 6 महीने से वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है और नाक से डिस्चार्ज आ रहा है, क्लियर डिस्चार्ज। ही हैज अ हिस्ट्री ऑफ सीजनल एटोपिक राइनोसाइनोसाइटिस, तो सीजनल है, एलर्जी कह सकते हैं, राइनोसाइनोसाइटिस मतलब कि नाक और साइनसेस की प्रॉब्लम है उसको। एंटी राइनोस्कोपी शोज अ नेजल पॉलिप ऑब्स्ट्रक्टिंग द सुपीरियर नेजल मीएटस, राइनोस्कोपी की गई तो देखा कि सुपीरियर नेजल मीएटस जो है वहां पर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है पॉलिप से, एंड एक्सटेंडिंग ऑन टू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द नेजल कैविटी। सीटी हेड कराते हैं, कॉमन है, इज मोस्ट लाइकली टू शो पेसिफिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, दे आर आस्किंग कि ऑब्स्ट्रक्शन आया है सुपीरियर नेजल मीएटस में, क्या आपको पता है वहां पे क्या ओपनिंग है, किस चीज़ की ओपनिंग है, उसी चीज़ की स्पेसिफिकेशन आएगी सीटी में। बेस्ट है ये इमेज देख लो, अपने आप आंसर क्लियर हो जाएगा। दिस द इमेज ओवर हेयर, ठीक है ना। अब ये देखिए आप क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ खुल रही हैं। स्फिनॉइड साइनस ओपन्स इनटू स्फिनोइथमॉइड रिसेस, सबसे ऊपर ये होता है, इट इज अबव द सुपीरियर मीएटस। सुपीरियर मीएटस में क्या खुल रहा है, पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ इथमॉइड लेयर सेल्स, ये खुल रहे हैं 2 नंबर पे, सुपीरियर मीएटस, सुपीरियर नेजल मीएटस, ठीक है। बाकी योर मैक्सिलरी साइनस, योर फ्रंटल साइनस, है ना, योर एंटीरियर इथमॉइडल साइनस, याद रखो दे ऑल ओपन वेयर, इनटू द मिडल मीएटस, इनटू द मिडल मीएटस। और इन्फीरियर मीएटस में क्या खुलता है, एनएलडी, नेज़ोलैक्राइमल डक्ट ओपन्स इनटू द इन्फीरियर मीएटस। तो यहाँ से इतना बात क्लियर हो गई, रिवीजन हमारा कि सुपीरियर मीएटस में बेसिकली पोस्टीरियर इथमॉइडल लेयर सेल्स खुल रहे हैं। तो क्या ऑप्शन में ऐसा कुछ है, देखिए ढूंढो भाई। हाँ जी, पोस्टीरियर इथमॉइडल लेयर साइनस ये है, प्लस स्फिनॉइड साइनस जस्ट ऊपर ही खुल रहा है, इन दोनों में स्पेसिफिकेशन आ सकती है। आंसर क्या बना हमारा, आंसर इज अवर ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखें सेशन का। आई होप सब लोग सेशन कर रहे हो, रिवीजन करते रहो, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। आई कीप इट क्रिस्प एंड कंसाइज, मैं छोटा सेशन इसलिए रखता हूँ कि टाइम ज़्यादा खर्च ना हो, तुम्हारी तरह से ब्रेक हो जाए, फटाफट रिवीजन हो जाए, कोई सा भी क्वेश्चन कभी से भी कहीं से भी आ सकता है। लास्ट क्वेश्चन देखें। 34-year-old स्विमर प्रेजेंट्स टू योर ऑफिस विद एन एक्सटर्नल ईयर कैनाल इन्फेक्शन, बाहर इन्फेक्शन हो गया कान में उसके, ठीक। पेशेंट कफ्स ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, याद रखो, कुछ लोगों को याद आ गया होगा, हाँ ये पढ़ा था PYQ में, अभी 1-2 साल पहले ही आया है ये। सो पेशेंट कफ्स
During inspection of the external meatus with the speculum, the cuff represents from the irritation of which nerve that innervates an area of the external auditory meatus. तो कुछ ना कुछ इरिटेट हुआ है कहाँ पर, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस में या कैनाल में, विच लेड टू कफ. अब कफ इज अ फीचर ऑफ विच एरिया? कफ कैसे होता है? फेरिंग्स वगैरह, वहाँ से कफ होता है. अब कफ में यू नीड मोटर सप्लाई, मसल्स का है. व्हाट इज अ मोटर नर्व सप्लाई ऑफ फेरिंग्स लैरिंग्स? फेरिंग्स लैरिंग्स, वहाँ से कफ बेसिकली हो रहा है, उसकी मोटर नर्व सप्लाई क्या है? दैट इज फेरिंजियल प्लेक्सस. कौन सी नर्व है? वेगस नर्व है. क्या वेगस नर्व एक्सटर्नल ईयर कैनाल या फिर एक्सटर्नल ईयर में कुछ वेगस नर्व सप्लाई करती है? बिल्कुल करती है. बस वही आंसर है हमारा, बात खत्म हो गई. सिंपल वेगस नर्व है ना. देख लो, यहाँ इमेज देख लो, कान की इमेज देखो, क्रेन नर्व 7 and 10. 10 की कौन सी नर्व है? अगर ENT याद करो, ढींगड़ा बुक हम लोग पढ़ते थे, उसमें कौन सी नर्व है? 10th की याद करो मैं, तो आर्नोल्ड्स नर्व होती थी, है ना. देयर वाज आर्नोल्ड्स नर्व. और जैकबसन नर्व बोलते थे, जो कि 9th नर्व की ब्रांच होती थी, जो कि मिडिल ईयर सप्लाई करती थी, जैकबसन्स. तो ये हमारा 10th नर्व यहाँ से आ गया. बाकी इस इमेज में देख लीजिए, लेटरल पार्ट ऑफ द पिना की सेंसरी सप्लाई क्या है? ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व है, ग्रेटर ऑरिकुलर. सब जगह देखो वर्ड ऑरिकुलर आ रहा है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें. नर्व में ही ऑरिकल आ रहा है तो ऑरिकल होगा. सो गाइस, दिस वाज द 8th सेशन. एक इमेज ये भी ले लो, और आगे और 1-2 सेशन और हैं पुराने. हमने अभी तक इस सेशन को मिला के टोटल 80 क्वेश्चन हो गए हैं, विद क्रिस्प एक्सप्लेनेशन हो गया. फटाफट जब मौका लगे रिवाइज कर लो. आई ऑल्सो लॉन्च्ड अ वीडियो रिगार्डिंग हाउ टू प्रिपेयर इन द लास्ट वीक और 10 days. वो भी एक बार जरूर देख लेना, थोड़ा आइडिया लग जाएगा अगर कन्फ्यूजन हो तो. चलो, इस इमेज में क्या है? इस इमेज में दे आर शोइंग अस द वेगस नर्व एंड हाउ द वेगस नर्व इज गिविंग ऑफ फेरिंजियल ब्रांचेस एंड द लैरिंजियल ब्रांचेस. वही सारी चीज़ है. एक बार इमेज को फिर भी आप देख सकते हैं. चलो, सो दैट्स ऑल. कीप ऑन योर प्रिपरेशन. कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखना. आई होप यू आर एंजॉइंग. बस एंजॉय करते रहो, पढ़ते रहो, एंड ऑल द बेस्ट.